بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ آیت نمبر 274۔ جو لوگ اپنے مال دن رات خاموشی سے بھی اور اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنا ثواب پائیں گے اور نہ انہیں کوئی خوف لاحق ہوگا نہ کوئی غم پہنچائے گا۔ آیت نمبر 275۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں اٹھیں گے تو اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو۔ یہ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ بیع بھی تو سود ہی کی طرح ہوتی ہے، حالانکہ اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ لہٰذا جس شخص کے پاس اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت آ گئی اور وہ سودی معاملات سے باز آ گیا تو ماضی میں جو کچھ ہوا وہ اسی کا ہے اور اس کی باطنی کیفیت کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جس شخص نے لوٹ کر پھر وہی کام کیا تو ایسے لوگ دوزخی ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ سود یا ربا ہر اس زیادہ رقم کو کہا جاتا ہے جو کسی قرض پر طے کر کے وصول کی جائے۔ مشرکین کا کہنا تھا کہ جس طرح ہم کوئی سامان فروخت کر کے نفع کماتے ہیں اور اس کو شریعت نے حلال قرار دیا ہے، اسی طرح اگر قرض دے کر کوئی نفع کمائے تو کیا حرج ہے۔ اس کے اس اعتراض کا جواب تو یہ تھا کہ سامان تجارت کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ اسے بیچ کر نفع کمایا جائے، لیکن نقدی اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی ہے کہ اسے سامان تجارت بنا کر اس سے نفع کمایا جائے، وہ تو ایک تبادلے کا ذریعہ ہے تاکہ اس کے ذریعے اشیائے ضرورت خریدی اور بیچی جا سکے۔ نقدی کا نقدی سے تبادلہ کر کے اسے بذات خود نفع کمانے کا ذریعہ بنا لینا جائے تو اس سے بے شمار مفاسد پیدا ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں بیع اور سود کے درمیان فرق کی تفصیل بیان کرنے کے بجائے ایک حاکمانہ جواب دیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال اور سود کو حرام قرار دے دیا ہے تو ایک بندے کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس حکم کی حکمت اور اس کا فلسفہ پوچھتا پھرے اور گویا عملاً یہ کہے کہ جب تک مجھے اس کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آ جائے گا میں اس حکم پر عمل نہیں کروں گا۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں یقیناً کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ ہر شخص کی سمجھ میں بھی آ جائے۔ لہٰذا اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے تو پہلے اس کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کرنا چاہیے، اس کے بعد اگر کوئی شخص اپنے مزید اطمینان کے لیے حکمت اور فلسفہ سمجھنے کی کوشش کرے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس پر اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کو موقوف رکھنا ایک مومن کا طرز عمل نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے سود کی حرمت نازل ہونے سے پہلے لوگوں سے سود وصول کیا ہے، چونکہ اس وقت تک سود کے حرام ہونے کا اعلان نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ پچھلے معاملات معاف ہیں اور ان کے ذریعے جو رقم وصول کی گئی ہے وہ واپس کرنے کی ضرورت نہیں۔ البتہ حرمت کے اعلان کے وقت جو سود کسی پر واجب الادہ ہو وہ لینا جائز نہیں ہوگا بلکہ اسے چھوڑنا ہوگا، جیسا کہ آیت نمبر
278 में हुक्म दिया गया है, यानी जिन लोगों ने हुर्मत सूदी की तस्लीम ना किया और वही एतराज़ करते रहे कि बै और सूद में कोई फ़र्क नहीं, वो काफिर होने की वजह से इब्दी अजाब के मुस्तहक होंगे। आयत नंबर 276। अल्लाह सूद को मिटाता है और सदक़ात को बढ़ाता है, और अल्लाह हर उस शख्स को नापसंद करता है जो नाशुक्रा गुनहगार हो। आयत नंबर 277। हाँ, वो लोग जो ईमान लाए, नेक अमल करे, नमाज कायम करे और ज़कात अदा करे, वो अपने रब के पास अपने अजर के मुस्तहक होंगे। ना उन्हें कोई खौफ लाहक होगा, ना कोई गम पहुँचेगा। आयत नंबर 278। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो, और अगर तुम वाकई मोमिन हो तो सूद का जो हिस्सा भी किसी के ज़िम्मे बाकी रह गया हो उसे छोड़ दो। आयत नंबर 279। फिर भी अगर तुम ऐसा ना करके तो अल्लाह उसके रसूल की तरफ से ऐलान जंग सुन लो, और अगर तुम सूद से तौबा करो तो तुम्हारा असल सरमाया तुम्हारे हक़ है। ना तुम किसी पर जुल्म करो, ना तुम पर जुल्म किया जाए। आयत नंबर 280। और अगर कोई तंगस्त कर्जदार हो तो उसका हाथ खुलने तक मोहलत देनी है, और सदक़े ही कर दे तो ये तुम्हारे हक़ में कहीं ज़्यादा बेहतर है, बशर्ते कि तुमको समझ हो। आयत नंबर 281। और डरो उस दिन से जब तुम सब अल्लाह के पास लौट कर जाओगे, फिर हर शख्स को जो कुछ उसने कमाया है पूरा पूरा दिया जाएगा, और उन पर कोई जुल्म नहीं होगा। आयत नंबर 282। ऐ ईमान वालो, जब तुम किसी मईन मियाद के लिए उधार का कोई मामला करो तो उसे लिख लिया करो, और तुम में से जो शख्स लिखना जानता हो इंसाफ के साथ तहरीर लिखे, और जो शख्स लिखना जानता हो लिखने से इनकार ना करे। जब अल्लाह ने उसे ये इल्म दिया है तो उसे लिखना चाहिए, और तहरीर वो शख्स लिखवाए जिसके ज़िम्मे हक़ वाजिब हो रहा है, और उसे चाहिए कि वो अल्लाह से डरे जो उसका परवरदिगार है, और उस हक़ में कोई कमी ना करे। हाँ, अगर वो शख्स जिसके ज़िम्मे हक़ वाजिब हो रहा है ना समझ या कमज़ोर हो, या किसी और वजह से तहरीर ना लिखवा सकता हो तो उसका सरपरस्त इंसाफ के साथ लिखवाए, और अपने में से 2 मर्द को गवाह बना लो। हाँ, अगर 2 मर्द मौजूद ना हो तो 1 मर्द और 2 औरतें उन गवाहों में से हो जाए जिन्हें तुम पसंद करते हो, ताकि अगर उन 2 औरतों में से एक भूल जाए तो दूसरी उसे याद दिला दे। और जब गवाहों को गवाही देने के लिए बुलाया जाए तो वो इनकार ना करे, और जो मामला अपनी मियाद से वाबस्ता हो, चाहे वो छोटा या बड़ा, उसे लिखने से इख्तार नहीं। ये बात अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा खरीन इंसाफ और गवाही को दुरुस्त रखने का बेहतर ज़रिया है, और उस बात की करीबी ज़मानत है कि तुम आइंदा शक में नहीं पड़ोगे। हाँ, अगर तुम्हारे दरमियान कोई नगद लेन देन का सौदा हो तो उसको ना लिखने में तुम्हारे लिए कुछ हर्ज नहीं है, और जब ख़रीद व फरोख्त करो तो गवाह बना लिया करो, और ना लिखने वाले को कोई तकलीफ़ पहुंचाई जाए ना गवाह को। और अगर ऐसा करोगे तो ये तुम्हारी तरफ से नाफरमानी होगी, और अल्लाह का खौफ दिल में रखो। अल्लाह तुम्हें तालीम देता है, और अल्लाह हर चीज़ का इल्म रखता है। ये कुरान करीम की सबसे तवील आयत है, और इसमें
सूद की हुर्मत बयान करने के बाद उधार खरीद व फरोख्त के सिलसिले में अहम हिदायत दी गई है, जिनका मकसद यह है कि तमाम मामलात सफाई के साथ हो। अगर कोई उधार किसी के ज़िम्मे वाजिब हो रहा हो तो उसे ऐसी तहरीर लिखनी या लिखवानी चाहिए जो मामले की नौइयत को वाज़े कर दे, और उस तहरीर में पूरी बात लागो लपेट के बगैर लिखनी चाहिए, और किसी का हक मारने के लिए तहरीर में कत्र बयानत से परहेज़ करना चाहिए। आयत नंबर 283। और अगर तुम सफ़र पर हो और तुम्हें कोई लिखने वाला ना मिले तो अदायगी की ज़मानत के तौर पर रहन कब्ज़े में रख लिए जाए। हाँ, अगर तुम एक दूसरे पर भरोसा करो तो जिस पर भरोसा किया गया हो वो अपनी अमानत ठीक ठीक अदा करे और अल्लाह से डरे जो उसका परवरदिगार है, और गवाही को ना छुपाए, और जो गवाही को छुपाए वो गुनहगार दिल का हामिल है, और जो अमल तुम करते हो अल्लाह उससे खूब वाकिफ़ है। आयत नंबर 284। जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है सब अल्लाह ही का है, और जो बातें तुम्हारे दिलों में हैं गोया तुम उनको जाहिर करो या छुपाओ, अल्लाह तुमसे उनका हिसाब लेगा। फिर जिसको चाहेगा माफ़ कर देगा और जिसको चाहेगा सज़ा देगा, और अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। आगे आयत नंबर 286 के पहले जुमले ने वाज़े कर दिया कि इंसान के इख्तियार के बग़ैर जो ख़यालात उसके दिल में आ जाते हैं उन पर कोई गुनाह नहीं है। लिहाजा उस आयत का मतलब यह है कि इंसान जानबूझकर जो गलत अक़ीदे दिल में रखे या किसी गुनाह का सोच समझकर बिल्कुल पक्के इरादा कर ले तो उसका हिसाब होगा। आयत नंबर 285। ए रसूल यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस चीज़ पर ईमान लाए हैं जो उनकी तरफ उनके रब की तरफ से नाजिल की गई है, और उनके साथ तमाम मुसलमान भी ये सब अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसके किताबों पर और उसके रसूलों पर ईमान लाए हैं। वो कहते हैं कि हम उसके रसूलों के दरमियान कोई तफरीक नहीं करते कि किसी पर ईमान लाए किसी पर ना लाए, और वो कहते हैं कि हमने अल्लाह और रसूल के अहकाम को तवज्जो से सुन लिया है और हम खुशी से उनकी तामील करते हैं। ऐ हमारे परवरदिगार, हम आपसे मग़फ़िरत के तलबगार हैं और आप ही की तरफ हमें लौट कर जाना है। आयत नंबर 286। अल्लाह किसी भी शख्स को उसकी वसअत से ज़्यादा ज़िम्मेदारी नहीं सौंपता। उसके फ़ायदे भी उसी काम से होगा जो अपने इरादे से करे, और नुकसान भी उसी काम से होगा जो अपने इरादे से करे। मुसलमानों, अल्लाह से ये दुआ किया करो कि ऐ हमारे परवरदिगार, अगर हमसे कोई भूल चूक हो जाए तो हमारी गिरफ्त ना फरमाए, और ऐ हमारे परवरदिगार, हम पर उस तरह का बोझ ना डालो जैसा आपने हमसे पहले लोगों पर डाला था, और ऐ हमारे परवरदिगार, हम पर ऐसा बोझ ना डालो जैसे उठाने की हमें ताकत ना हो, और हमारी खताओं से दरगुजर फरमाओ। हमें बख्श दीजिए और हम पर रहम फरमाइए। आप ही हमारे हामी व नासिर हैं, इसलिए काफिर लोगों के मुकाबले में हमें नुसरत अता फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह बकरा की तफसीर व तर्जुमा मुकम्मल कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।